हेलो एवरीवन। जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है रिकग्निशन मींस जो कि इट्स अ पार्ट ऑफ द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकग्निशन? तो इंट्रोडक्शन में हम कहेंगे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। बाय रिकग्निशन द स्टेट इज एक्सेप्टेड एज अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। मतलब मीनिंग क्या है? The formal acknowledgement of an entity as a state, जब यानी when other countries of the world treat the entity as a country to make independent relationship. तो definition आएगी कि various definitions were given by Fenwick, Jessup, Oppenheim. According to Fenwick, by recognition the members of international community formally accepted that the new state has acquired international entity and is entitled to all rights and special rights as a member of international community. अब आता है कि what are the types of the recognition, or we can say like that modes of recognition. So there are two types or modes. One is de facto, so we can say like that primary recognition, and second is the de jure. So what is de facto? So means country has recognized the new state but legal recognition is still pending which will be given later. या हम कह सकते हैं कि when the new state is kept under observation by other countries to watch whether the new state is competent or not. Or we can say like that, when it is doubtful to give permanent recognition. So when it is under observation whether the state to bear to the responsibilities at international level. Or we can say like that, it has been kept under observation whether new state is ready to solve its basic problems or not. So de facto is a conditional and provisional, not permanent recognition. तो इसमें criticism भी कुछ हुआ था. तो what are the criticism? तो Jessup has raised the objection. He said, when any new state has fulfilled all the four elements, then withdrawal of the recognition does not arise. Next आता है de jure. Means final recognition or the legal recognition. So we can say like that कि de jure recognition is given by the de facto. So permanent recognition which can be withdrawn. Giving de jure recognition means it is accepted that new state contains all elements of the nationality and able to fulfill all the responsibilities of the international law. So according to Professor H.A. Smith, he described three conditions. उन्होंने तीन कंडीशन के बारे में बताया कि अगर प्रॉपर स्टेबिलिटी आ जाए, सेकंड सपोर्ट ऑफ द पब्लिक और द पॉपुलेशन हो, और थर्ड द कॉम्पिटेंस टू बियर द इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब हम देखेंगे कि चलो ये मान ली बात, अब बताइए कि डिफरेंस क्या है, कि डी फैक्टो और डी ज्योर में क्या है डिफरेंस है. तो एक फेमस केस लॉ है लूथर वर्सेस सगौर 1921 कि इट हैज बीन सेड दैट द de facto and de jure recognition does not make any difference because there is not a question of withdrawal once it has been recognized a new state. कहने का मतलब है कि जब एक बार न्यू स्टेट का आपने रिकॉग्निशन दे दिया तो विड्रॉल का सवाल ही क्यों उठता है. लेकिन फिर भी हम देखेंगे डिफरेंस कुछ आ रहे हैं कि डी फैक्टो एंड डी ज्योर में क्या डिफरेंस है. जैसे डी फैक्टो क्या है, कंडीशनल है एंड प्रोविजनल है, लेकिन डी ज्योर फाइनल है. अगर डी फैक्टो पे जाएं तो मेंटेन पॉलिटिकल रिलेशंस इज नॉट नेसेसरी, लेकिन इधर अगर डी ज्योर जाएंगे तो पॉलिटिकल रिलेशंस कैन बी एक्सप्रेस टू मेंटेन. ये फर्स्ट स्टेप है डी फैक्टो, जबकि ये फाइनल स्टेप है. अब आता है कि बेनिफिट क्या होंगे रिकॉग्निशन के, यानी बेनिफिट्स और कॉन्सिक्वेंस क्या रहेंगे. अगर हमने मतलब कोई भी एक नया स्टेट जो आया एग्जिस्टेंस में, उसने अगर रिकॉग्निशन ले ली तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. तो स्टेट कैन मेक रिलेशंस विद अदर एग्जिस्टिंग स्टेट्स for various benefits and becomes the part of the international community. Third, can go to international court
फॉर एनी डिस्प्यूट विद अदर स्टेट। किसी भी अदर स्टेट से अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है। अब कुछ थ्योरीज हैं जो कि रिकग्निशन के लिए दी गई हैं, जिनको हम कहते हैं कि थ्योरीज ऑफ द रिकग्निशन। तो देयर आर टू थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन, वन इज कॉन्स्टिट्यूटिव एंड सेकेंड वन इज द डिक्लेरेटिव और एविडेंटरी। तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या कहती है? इट हैज बीन फॉलोड बाय हेगल ने, एंजिलोटी ने, ओपनहेम ने और हॉलैंड ने इसको सपोर्ट किया। उनके अकॉर्डिंग कि इफ एनी एंटिटी गेट्स 4 एलिमेंट्स इवन दो इट कैन नॉट बिकम स्टेट अंटिल एंड अनलेस द अदर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज। उनके अकॉर्डिंग कहते हैं कि अगर उसने 4 एलिमेंट्स फुलफिल भी कर लिए, लेकिन जब अदर जो कंट्रीज है वो उसको अगर उसको ये नहीं मानते हैं कि वो एक कंट्री है, रिकॉग्निशन नहीं देते हैं, तो वो एक स्टेट नहीं है उनके अकॉर्डिंग। तो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टेट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन रिकॉग्निशन इज गिवन टू दैट एंटिटी। इसके हिसाब से इंटरनेशनल पर्सनैलिटी इसमें क्या है कि जब सारे जो दूसरे जो कंट्रीज हैं वो उसको मतलब मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रिकॉग्निशन दे देते हैं उसको, तभी वो एक स्टेट के रूप में देखा जा सकता है। तो क्रिटिसिज्म हुआ इसके अंदर कि अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स द रिकॉग्निशन इज नॉट नेसेसरी टू बिकम ए स्टेट व्हेन उसने कि जब 4 के 4 एलिमेंट्स फुलफिल कर लिए, यानी व्हेन इट फुलफिल्स द 4 एलिमेंट्स। जैसे अपन एग्जांपल देख लें फॉर चाइना वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएसए फ्यू इयर्स बैक, बट चाइना तो वाज कंसिडर्ड अ कंट्री पहले से ही था, उसको हम रिकॉग्निशन उसके लिए मैटर नहीं करता था। अब जैसे अब अनदर एग्जांपल वी कैन से कि पाकिस्तान अभी भी इजराइल को रिकॉग्निशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता? लेकिन इजराइल तो कंट्री है ना। तो डिक्लेरेटिव थ्योरी क्या कह रही है? डिक्लेरेटिव और द एविडेंटरी, जो इसको फॉलो किसने किया? इसको फॉलो किया मतलब इसको सपोर्ट किसने किया? फिशर, ब्रिलिंग एंड हॉल। So according to this theory, there is no need of recognition, only declaration of new state is necessary for the evidence. That's it. So recognition is not essential for the existence. Recognition is the only proof of the fact that a particular state has acquired the essential elements to become state. अब इसमें भी क्रिटिसिज्म आ गया। क्रिटिक्स कहते हैं कि it is not a proper to accept recognition as a declarative function. तो इन्फ्रेंस क्या निकलता है? अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला? क्या कंक्लूजन निकाले, क्या इन्फ्रेंस निकाले कि नीदर ऑफ द टू थ्योरीज इज कंप्लीट। रिकॉग्निशन कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूटिव